Hello, students. Hello. We'll get started in 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, or less. We'll actually start in less than a minute now. Students, we'll get started in less than 30 seconds. कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बच्चों कैसे हो? Hello, hello, hello. Lot of Josh. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Good evening, Krishna, Priyanshu, Srishti. कैसे हो बच्चों? Can you all hear me? आवाज आ रही है? बढ़िया, मस्त, है ना? चलिए. So I think we'll wait for exactly 20 seconds. Maybe some students are still on the way. We are going to cover 5 doubts today that I have received in past couple of days, and I could not ignore these doubts. And I thought, because the doubts are so good, maybe if I can do a session on this, and more students will benefit, obviously. तो एक बार उन doubts को देख लेते हैं. Thank you for the students who send me these doubts. And again, I encourage everybody to send me doubts. है ना? Doubt से ही है ना, एक बार यहाँ पर पेन टूल निकाल लेते हैं जिससे कि लिखना भी इजी हो जाएगा. So today we are going to talk about doubt decipher mechanics basically. We are going to decipher some of the doubts, and these are really good quality doubts. So keep sending me doubts, and the ones which I think, we should be covering in the class, we'll keep covering it. First of all, my name is Bhavdeep Sethi, M.Tech from IIT Bombay, and I convert physics haters to physics lovers. And I always say physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी. Hello Chakshan, hello Priyanshu, Krishna, everybody. So with that said, expectations from the session, है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि expectation आपकी कुछ और हो और मैं कुछ और आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ. तो एक बार मैं expectation set कर देता हूँ कि इस session में 30-40 minutes का session होगा. इसमें क्या expectation होनी चाहिए आपको. So we'll be covering 5 doubts that were submitted by students. These are good quality doubts. And you know me कि I don't go for quantity, I rather go for quality, है ना? करने को तो मैं 50 doubts कर लेता, but these are good quality doubts that I think they're going to make you think and make you learn a lot of things, and that's why there are 5 doubts. So we'll be covering exactly these 5 doubts today. At times, like in the first question, I'm not going to solve it completely. It's a very good quality question. I would encourage you to have creative thinking skills, है ना? आपकी develop करने के लिए I'm going to give you the hints, and I'm sure you're with that you can proceed further. As in, I'll not do the calculations for you. I'll be telling you how to do. I'll give you the rasta, है ना? You walk on it. Mad Ranger, hello बच्चे. Priyanshu, hello बच्चे. Now, if you doubt लिख दिया, है ना? Your doubt isn't covered today. Still focus in the class. You will learn a lot. क्योंकि क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई मेरी डाउट क्यों नहीं ली आपने, उसकी डाउट क्यों ली. उसकी डाउट में मेरे को लग रहा होगा ज्यादा समझ में, मतलब ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. दैट्स व्हाई. So without spending any more time, let's go directly into first doubt, and this was submitted by Devansh Tripathi. So a small object, बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है ये. A small object is launched from a flat horizontal surface at an angle of 60 degrees. कोई बड़ी चीज नहीं है, 60 degrees पे projectile है, parabolic पास जाएगा, समझ में आता है. At that moment, ascending sun is seen at an angle of 30 degrees. मतलब ये sun का जो elevation है ये 30 degrees है, ये 60 पे फेंका था. तो ये एक बार बना लेते हैं ना. कहाँ है मेरा राइटिंग टूल, कहाँ चला जाता है यार? ऐसा कैसे चला गया? मैंने पेमेंट नहीं किया क्या उसका? ना ना, आई हैव पेड फॉर द फुल ईयर. ओके, हाँ अभी आ गया. कहाँ गया यार? हाँ आ गया. हाँ चलिए. सो देवांश त्रिपाठी का डाउट ले लेते हैं. सो व्हाट इट इज टेलिंग अस कि ये तो देखो एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा, ये बात हमको पता है, ऐसे कहीं जाएगा. तो बोल रहे 1 सेकंड के बाद उसकी शैडो की स्पीड क्या होगी. मैं फिर से सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ, नेक्स्ट पेज में हम करेंगे. The point is we have thrown this at 10 meters per second at an angle of 60 degrees. मतलब 60 degrees projectile ऐसे किया मैंने, ऐसे पैराबोलिक पाथ लेगा. तो 1 सेकंड बाद कहीं यहां पर होगा, मे बी, है ना, कुछ होगा 1 सेकंड के बाद यहां पर होगा. एंड दे आर टेलिंग अस कि 1 सेकंड के बाद उसमें, है ना, बेसिकली व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स शैडो. सन का एंगल भी दिया हुआ है.
क्वेश्चन क्लियर है सबको तो यस बोल दीजिए एक बार यस लिख दीजिए इफ द क्वेश्चन इज क्लियर। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका इसको, इट विल टेक ए पैराबोलिक पाथ बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। सो नाउ दे आर सेइंग आफ्टर 1 सेकंड समवेयर द बॉल इज हियर एंड दिस इज द सन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। उसकी शेडो यहाँ पर ग्राउंड में बन रही होगी, वो उसका क्या पाथ है, क्या वेलोसिटी है। So very beautiful question here, but before that, let's understand how shadows actually work, है ना, how shadows work. Conceptually समझ रहे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक सन है, मतलब कितने सन होंगे, ऑब्वियसली एक ही सन होगा, और यहाँ पर ये धरती है ना। So now let's say the angle of elevation of the sun is 30 degrees. Let's talk about sun being at 30 degrees. And अगर ये 30 degrees एंगल है और यहां पर एक पक्षी है, दिस इज अ बर्ड, मे बी दिस इज अ बर्ड, कैन वी ऑल से इसकी शेडो यहां पड़ेगी? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है हवा में, इसी लाइन पर वहां पर शेडो बनेगी? दैट पार्ट इज क्लियर? अरे ये पार्ट आपको क्लियर? तो अगर मैं देखूं उस लाइन पे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है अभी, कि अगर मैं देखूं कि ये मेरा ग्राउंड था और ये मेरी लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड सन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे? तो ऐसा नहीं होगा, जो एक गलती लगती है काफी स्टूडेंट्स को, कि अगर पक्षी यहां पर था और पक्षी आगे आ गया तो एंगल चेंज हो जाएगा। ऐसा लगता है ना, एंगल चेंज हो गया, ऐसा लगता है कि नहीं आपको? है ना, ऑब्वियसली जिस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं, दीज आर नॉट टू स्केल, तो लगता है पक्षी आ गया तो एंगल चेंज हो गया, बट ऐसा थोड़ी होगा यार। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑलमोस्ट, so these rays are not coming like this, they are actually parallel to each other. इस बात को आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी गलती होती है इस तरह के क्वेश्चन करने में कि एंगल चेंज होगा, एंगल नहीं चेंज होगा। So basically when you start solving this question, you don't draw the sun. That is the whole point, that is the whole key to this question, क्योंकि उसके बिना आप गलतियां पे गलतियां करते जाओगे। आपने क्या करना है, यहां पर पैरेलल लाइंस बनानी है। ये सन की रेज आ रही है, these are the rays from the sun, these are the rays from the sun, है ना। अब क्या करा हमने, हमने यहां पर, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज अ बर्ड हियर, उसकी शैडो यहां बनेगी, डू यू एग्री? यहां शैडो बनेगी। एंड लेट्स से बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन अलग है, मैं बर्ड की बात कर रहा हूं, एक सिचुएशन समझा रहा हूं। लेट्स से द बर्ड फ्लाइज हॉरिजॉन्टली एंड बर्ड फ्लाइज 5 meters there. Don't you think shadow has also moved 5 meters? These are after all parallel lines, parallelogram बनेगा। बर्ड 15 मीटर चली एक सेकंड में, शैडो 15 मीटर चलेगी, यहां तक क्लियर है? If the bird were flying horizontally at 9 meters per second, उसकी शैडो उसी डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड होगी। बर्ड 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ईगल है, तो ये 50 से जाएगी, बर्ड 1 से जा रही है, ये 1 से जाएगी, सेम डायरेक्शन में, एंगल नहीं चेंज हो रहा। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट सिनेरियो की। सपोज बर्ड सीधा नहीं जा रही, अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब देखिएगा ध्यान से। अगर बर्ड सीधा नहीं जा रही है एंड बर्ड इज फ्लाइंग डाउन, बर्ड नहीं चली, बॉल है, बॉल की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक बॉल है और बॉल वर्टिकली नीचे गिर रही है, वर्टिकली, तो देखते हैं क्या होगा। अगर बॉल यहां पर थी और बॉल यहां नीचे गिरी, इतना सी बॉल इतना नीचे गिरी, जितना भी गिरी, तो उसको अगली रे पे यहां पर मिलेगा, जितना भी नीचे गिरेगी अगली रे पे, तो उसकी शेडो, बॉल ने इतना चला लेकिन उसकी शेडो मूव करी यहां से यहां तक। सो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्स मे बी। सो कैन आई से इफ द बॉल वाज फॉलिंग बाय वाई, द शेडो मूव्ड बाय एक्स, ball falling by y, shadow moving by x with an angle of theta being given to us, we can say tan theta is equal to y by x, or in other words, the x is equal to y by tan theta. So what we are finding now, very interesting fact, if the ball falls by y, its shadow has moved by y over tan theta. यहां तक क्लियर है तो बताइए। अगर बॉल हॉरिजॉन्टली जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से शेडो जा रही है, लेकिन अगर वाई मीटर पर सेकंड से गिर रही है,
तो उसकी शेडो चल रही है y/tan थीटा। ये क्लियर है तो बस कहानी खत्म। अगर ये क्लियर है तो वी आर डन माय डियर फ्रेंड्स। फिर तो पीस ऑफ केक आ गया यार, केक खाएंगे भी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत इजी सिचुएशन हो गई। ये 10 दिया है और ये 60 दिया एंगल, सो इजंट दिस 5 meters per second and this is 5√3 meters per second। इतना तो आता है भाई, है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब 5√3 से जा रहा है तो 5√3/10 पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, which is less than 1 second. So what I at least know for now is it is coming down, but that doesn't really matter. But the whole point is 1 सेकेंड बाद वो यहां पर कहीं है, सीधी सी बात है। आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 5√3/10 सेकेंड्स में पीक पे पहुंचेगा तो 1 सेकेंड बाद वहां पर कहीं है। अब 1 सेकेंड बाद हो क्या रहा है, 1 सेकेंड बाद 5 वेलोसिटी तो कंटिन्यू करेगी। This 5 velocity will continue. And how much will this velocity be? Let's calculate. We know in the vertical direction we have to celebrate with Utsav. And we know in the vertical direction initial velocity is 5√3, time is 1, displacement से मतलब नहीं, acceleration 9.8 कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे, 10 बोल देते हैं, and velocity is what I have to find. So I'll say velocity is equal to, this is negative acceleration by the way, u, which is 5√3 minus 9.8. So 5√3 minus 9.8 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। So now the shadow has two components. One is 5 and one is 5√3 minus 9.8 tan 30 डिग्रीज, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्रीज है, मतलब ये पूरा √3 से मल्टीप्लाई होगा शेडो के लिए। तो शेडो की वेलोसिटी हो जाएगी 5, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसके आगे √3 टाइम्स 5√3 minus 9.8। आई हैव गिवन यू इनफ क्लूज नाउ, इसके आगे करना बहुत इजी है। कैन आई डू NSEP फ्रॉम नाउ स्टार्ट? यस अमन बेटा, आई हैव स्टार्टेड अ कोर्स दिस मंडे, यू कैन ज्वाइन दैट, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन हियर। क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए यार। क्लियर है? यस नो, यस नो, यस नो। So we are deciphering the doubts. We are trying to look at the doubts which are looking like very difficult, लेकिन उनको एक common sense से आप करोगे तो कुछ नहीं है यार, है ना। और solution तो फिर ऑनलाइन में मिल जाते हैं, पैरेट्स भी याद कर लेते हैं हम, पैरेट थोड़ी है। चलिए अगला सवाल किसने भेजा भैया? श्रेया ने भेजा। चलिए गुड जॉब श्रेया। A car is moving, सर √3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? डिवाइडेड बाय tan थीटा आया था ना सृष्टि। सो tan थीटा, tan 30 डिग्रीज इज 1/√3, सो 1/√3 से डिवाइड करोगे तो √3 ऊपर जाएगा। क्लिक के देखिएगा। यस यस संदीप कुमार, ये क्लास हर किसी के लिए है ना। डोंट वरी वरी संदीप बेटा, आप 12th में हो चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, कंसेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स आल्सो बाय द वे, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम भवदीप सिंह सेठी। एंड बाय द वे अगर कोई इस टेलीग्राम पर नहीं है, रुकिए रुकिए, ये तो मैं बोलना ही भूल गया पहले। अरे 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 अरे, अगर कोई इस टेलीग्राम पर नहीं है तो भाई क्यों नहीं हो यार, इसको ज्वाइन कर लो, व्यूअर्स बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, जल्दी से करिए, जल्दी 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 जल्दी, है ना। बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, इसका लिंक भी है डाउन हियर। हाँ चलिए फटाफट से श्रेया का डाउट लेंगे। श्रेया ने लिखा, अ कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एन आवर along a straight road which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90 degrees turn by the side of the wall. A fly flying at a constant speed of 100 kilometers an hour starts from the wall towards the car at an instant when the car is 20 kilometers away, flies until it reaches the glass pane of the car and returns to the wall at the same speed. It continues to fly between the car and the wall till the car makes the 90 degrees turn. What is the total distance the fly has traveled during this period and how many trips has it made? ओहो आशी प्रिया, क्या हाल है बेटा? आशी प्रिया is one of my old students, very committed, very sincere, and she writes very beautiful poems also. Welcome बच्चे। So situation कुछ ऐसी है कि एक कार है और ये कार
जा रही है 40 किलोमीटर्स एन आवर से, 40 किलोमीटर्स पर आवर, and then there is a vertical wall here, and this wall is 20 kilometers away. यहां से लेके यहां तक 20 किलोमीटर का फासला है. अब समटाइम्स द क्वेश्चंस आर नॉट रियलिस्टिक लुकिंग कि भाई वहां से मक्खी ने उसको देख लिया और आगे पीछे पेंडुलम बन रही है, बट व्हाट कैन वी से. अब बोलते हैं कार चल रही है लेकिन यहां पर एक मक्खी है और मक्खी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है. यार क्या बात है यार, मक्खी को है ना रिपब्लिक डे में हाथी पे बिठाई है. सो अब ये जा रही है 100 किलोमीटर एन आवर से. तो होगा क्या, दोनों आपस में कहीं मिलेंगे, है ना, कहीं मिलेंगे, और मिलने के बाद कार तो चलती जाएगी, मक्खी वापस चली जाएगी क्योंकि मक्खी फास्ट है ना. सो कार इज कमिंग हियर, मक्खी मीट्स हियर, एंड मक्खी मूव्स बैक, कार कम्स हियर, कार कम्स हियर, है ना. सो यू हैव टू रियलाइज कपल ऑफ थिंग्स हियर. This is a geometric progression. First of all, you have to understand that. That is not part of the discussion for this question usually, but you have to understand. है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, यहां से जाएगी, कम डिस्टेंस करेगी, अगली ट्रिप और कम करेगी और कम करेगी और कम करेगी, और टाइम कम लगता जाएगा, जर्नी कम होती जाएगी, मोर फ्रीक्वेंटली मीट करेगी कार को, है ना. बोलते हैं भाई जब कार यहां पर पहुंची, एक्सीडेंट से बचाने के लिए उनका 90 डिग्रीज टर्न ले लिया. अब राइट बिफोर इट टेक्स द टर्न, मक्खी ने अब तक कितनी ट्रिप करी और कितना चला. तो नाउ हियर द assumption is big assumption that मक्खी is traveling continuously with 100 kilometers per hour constant. Secondly, वो यू टर्न में टाइम नहीं लगा उसको, इंस्टेंटेनियसली हुआ, विच इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना. बट दैट्स द क्वेश्चन. सो इट टेक्स 0 सेकंड्स में टर्न लिया, पहुंची, 0 में टर्न लिया, पहुंची, 0 में टर्न लिया. सो बेसिकली हो क्या रहा है, ड्यूरिंग दिस जर्नी विच इज गोइंग टू बी हाफ आवर लॉन्ग, 20 किलोमीटर चलना है 40 की स्पीड से, आधे घंटे में कार वहां पहुंचेगी. तो उसकी जर्नी ब्रेक जरूर हुई है, छोटी 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 हो रही है, बट ओवरऑल मक्खी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल हाफ एन आवर, क्योंकि कार विल टेक हाफ एन आवर, मक्खी इज टेकिंग 100 किलोमीटर पर आवर, हाफ एन आवर. सो मक्खी विल डेफिनेटली ट्रेवल 50 किलोमीटर. ये पार्ट तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? यस नो, यस नो, है ना, क्योंकि द कार विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर, and the makhi is traveling continuously with 100 kilometers per hour here, 100 here, 100 here, 100 here, 100 here. तो वो 0 सेकेंड्स में यू टर्न लिया है, तो हाफ एन आवर में 50 किलोमीटर चलिए. Now how many trips has it made, कितनी ट्रिप लगेंगी उसकी, यहां से यहां, यहां से यहां. भाई हर बार छोटी होती जा रही है जर्नी, लेकिन फास्ट भी हो रही है. सो डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट मेनी ट्रिप्स? Because the whole point is go to the concept of calculus, जहां पर हम infinitesimally small की बात करते हैं. हमने कहा नहीं, कभी तो जर्नी खत्म होगी, नहीं होगी. कार 1 मिलीमीटर दूर है तो मक्खी आधा है ना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और करेगी. कार इज 1 बिलियंथ ऑफ ए मिलीमीटर देयर, स्टिल मक्खी इज डूइंग राउंड, है ना. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मक्खी की इनफाइनाइट ट्रिप्स होने वाली हैं, और कार को हमने मान के चलना है कि यार वो कब टर्न लेगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद ही लेगी, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि कब लेगी वो यार, है ना. आई डोंट नो, आई मीन दिस इज वन ऑफ द पैराडॉक्सेस दैट वी हैव टू, है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक ए हाफ स्टेप पैराडॉक्स जो चक्षुष अरोड़ा कह रहा है. एक दिन हम क्लास में वो भी बात कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो फिर तो कार कभी टर्न ही नहीं ले पाएगी, है ना. बट दीज आर थिंग्स फॉर द लेटर. Let's continue with our physics problems for now. So third question came from Tanmay Singla, one of very regular students here. A stone is projected from a horizontal plane. It attains a maximum height h and strikes a stationary smooth wall and falls on the ground vertically below the maximum height. Assume the collision to be elastic. The height of the point on the wall where the ball will strike is. Very beautiful question, but very easy also. But I have taken this because it's very beautiful. इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. जब भी दो थिंग कोलाइड करती हैं, आवाज आती है. तो अगर आपने एक बॉल ली, उसको दीवार पे फेंका, the ball is going to make some sound. It is going to convert that energy, some of the energy, into sound energy plus heat energy also. But when we are saying it's an elastic collision, elastic collision मतलब no loss of energy.
जितनी काइनेटिक एनर्जी से गई थी उतनी काइनेटिक एनर्जी से आएगी, मतलब जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से आएगी। अनदर थिंग इज बिकॉज इलास्टिक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, so think about this, and again I'm covering a concept here, not this question first of all, कि भाई अगर आपके पास एक दीवार है और अगर एक वॉल पे बॉल जाती है, सपोज दिस इज अ बॉल स्ट्राइकिंग हियर at an angle of theta, let's say this is theta, so you can break this velocity and say the ball was hitting this with v cos theta। नहीं, वहीं बना देता हूं ना, अलग दूर से क्यों बनाया, है ना। बॉल जब यहां पर आई थी, बॉल लाल हो गई, जो भी हो गई, तो बॉल हैज a velocity of v cos theta and ball had a velocity of v sin theta, because there is no friction on the wall. When the ball returns back, this v sin theta does not change, क्योंकि there is no friction, there is no force in the direction of the wall. But v cos theta, because of elastic collision, and that is the reason I have taken this question, because you have to learn these basic things before you go higher level. The word elastic collision is making sure that v cos theta था, तो ये v cos theta होगा. And because of these ideal scenarios where there is no friction, v sin theta remains v sin theta. And there comes your beautiful law of reflection. Isn't this making sure that tan theta is same throughout, so theta is theta? देख लीजिए कितनी बढ़िया बात अभी पता चली हमको। अगर आपने इस बात को रियलाइज किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। If this were theta, so this theta is basically arc tan of this divided by this, and same goes here, and this proves your law of reflection. And basically, if you go back to Newton days, Newton actually pointed out the same thing. Newton said light is made up of tiny little particles, and when you take a ball and throw it on the wall, with the elastic collision, it will come back at that same angle. And that's how he's saying law of reflection, कि भाई angle of reflection equal to angle of incidence, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, अभी नहीं पता था तो अब बता दिया मैंने। तो अब हो क्या रहा है, सिचुएशन इज मोर लाइक, ओके बॉल गई, बॉल को यहां जाना था, बोलते हैं कि इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट h, एंड देयर समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ वॉल हियर। अब वॉल से बॉल टकराएगी तो क्या बोल रहा है वो, तो बोल रहा है कि बॉल वापस आकर यहां गिरी। कहां गिरी, मैक्सिमम हाइट के नीचे। Now, if you really do that analysis over there, you will realize कि यहां पर बॉल जिस तरह जा रही थी, बॉल के पास दो वेलोसिटी थी, एक ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी। जब वो वापस आ रही है तो ये वाली वेलोसिटी सेम है और ये वेलोसिटी भी सेम है, तो एवरीथिंग रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। इट इज मोर लाइक ए मिरर इमेज, which I have not drawn very beautifully here, I know that, but if you were to draw this to scale, you would actually see this r is equal to this, है ना, x बोलो r बोलो, मैं काम करता हूँ ठीक से बना ही देता हूँ उसको, so that you can see clearly what I'm talking about. ये थर्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन और हैं अभी हमारे पास। तो what I was trying to say is, अगर आपने बॉल को थ्रो करा एंड बॉल टेक्स something like this, so what would now happen is, यहां पर बॉल कुछ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा, फिर मैं कोशिश मेरी फ्री हैंड की है पूरी, नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बट माय होल पॉइंट इज, है ना, व्हेन यू ड्रॉ ब्यूटीफुली दिस x विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू दिस x, क्योंकि इट विल बी अ मिरर इमेज, है ना। सो यू नो कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो फ्रॉम दैट एनालिसिस यू विल एक्चुअली नो कि ये जो है बेसिकली टाइम बराबर है, दिस बेसिकली इज गोइंग टू लीड टू द टाइम, कि भाई इतना टाइम जो लगना था उतना ही टाइम में वापस आई है। सो बेसिकली दीज टू टाइम्स आर इक्वल, एंड इफ यू रियलाइज, इफ यू ड्रॉप अ बॉल, इट गोज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, है ना। तो जो टाइम यहां पर लगा उतना ही टाइम नीचे लगा, अब ऐसे समझिए उसको। तो 1:3 के रेशियो में बांटेगा, तो ये 1 है ये 3 है, मतलब 3h, है ना, थोड़ा 3/4h हो जाएगा, क्योंकि ये 3
1:3 में बांटेगा तो पूरी हाइट अगर h थी तो 3/4h हो जाएगा ये। Another way to do the same question would be if you want me to tell you the mathematical way, you should try yourself. You try to understand कि भाई अगर ये x है ये x है, मतलब ये पूरा जो था ये अगर रेंज था तो दिस इज रेंज का 3/4। ऐसे समझिए उस बात को, मैथमेटिकली बता रहा हूं अभी। क्योंकि अगर पूरी रेंज r थी तो ये r/2 हो गया और ये r/4 हो गया ना, आधे आधे में बांटा। तो 3r/4 रेंज के लिए आप टाइम निकाल लो, 3r/4 के लिए रेंज के लिए टाइम निकाल लो। उस टाइम में आप देखो हॉरिजॉन्टल कितना चला था, एंड यू विल गेट द सेम आंसर 3h/4। ठीक है, चलिए ये सब मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा। Now, two balls are projected. This is coming from Shyameshwar Gupta. Two balls are projected from the top of a cliff with equal initial speeds of u. One starts at an angle theta above the horizontal, while the other at theta below. Find the differences in range. मतलब क्या कर रहा है उन्होंने, देख लेते पहले तो कि भाई अगर मेरे पास एक क्लिफ है यहाँ पर, है ना, यहां से एक बॉल लाल कलर की ली मैंने, और थीटा और यू बराबर है, एक नीचे एक ऊपर है। सो बेसिकली लाल बॉल को मैंने फेंका कि इसका यू कॉस थीटा ये था और यू साइन थीटा ये था, है ना, ऐसे करोगे ना अब, यू साइन थीटा, है ना, where what we are saying is this angle was theta, दिस एंगल was theta। ये क्लियर है आपको? उस बॉल को ऐसे फेंका यू, है ना, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है ना, उसको यू फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, सो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब एक दूसरी बॉल को फेंका होगा उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली यहां लिख देते हैं। एक बार मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं क्योंकि स्पेस कम लग रहा है मुझे यहाँ पर। कि if I draw that again, so if I say there is a cliff here, let's say, so basically you are giving a lal ball a velocity of u cos theta here and u sin theta here, और दूसरी बॉल को ऊपर फेंका है तो एक लाल बॉल ले लेते हैं, सॉरी नीली बॉल ले लेते हैं, तो नीली बॉल का u cos थीटा तो सेम होगा, बट u sin थीटा डिफरेंट हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लाल बॉल पास गिरेगी ना थोड़ा, लाल बॉल क्योंकि आप इस तरह फेंक रहे हो तो यहां गिरेगी। एंड देन दे आर सेइंग व्हाट अबाउट द ब्लू बॉल विल हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, इट विल फॉल देयर। कह रहे ये डिफरेंस इन रेंजेस बताइए, डिफरेंस इन रेंजेस। सो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आप बिग पिक्चर देखो, चाह क्या रहे हो भैया। ये डिस्टेंस, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड बराबर है u cos थीटा। सो डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, दूर दूर क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि टाइम डिफरेंट है। आप उसको इस तरह से लो, उसका टाइम डिफरेंट है ना, क्योंकि वेलोसिटी u cos थीटा है, इसका टाइम ज्यादा था, इसका टाइम कम था, इसलिए ये फर्क आया। तो ये फर्क होगा कितना, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन टाइम, क्योंकि u cos थीटा इंटू लाल का टाइम ये है, u cos थीटा इंटू नीले का टाइम ये है, तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय नीला का टाइम लाल का टाइम। यहां तक क्लियर है ना? तो अब उसको एनालाइज करते हैं कि भाई इक्वेशन लिखकर टाइम निकाल लेते हैं ना। तो आई नो डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम लाना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नीली वाली की इक्वेशन बनेगी, ऊपर प्लस ले लूं, अगर मैं ऊपर प्लस ले लूं तो माइनस एच जा रहा है, वो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा वन, नहीं यू साइन थीटा, यू टी मतलब टी वन माइनस, है ना, जी भी नीचे है, जी टी वन का स्क्वायर। ये क्लियर सबको? ये इक्वेशन बन गई उसकी ब्लू वाले की। नेगेटिव एच इज इक्वल टू यू पॉजिटिव है और फिर जी नेगेटिव है ना। अब लाल वाले की इक्वेशन सेम बनेगी, तो लाल के केस में आप इसको पॉजिटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है, नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं, अब कन्वेंशन लेना है तो नीचे पॉजिटिव ले लूं क्योंकि सभी कुछ नीचे ही है, तो उसमें लिखूंगा एच पॉजिटिव is equal to u sin theta which is also positive now, t1 t2, ये t2 हो गया, माइनस हाफ, हाफ लिखना उधर भूल गया मैं, लिख देता हूं जी टी स्क्वायर।
है ना, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, मिलेगी 1/2, है ना. So these are the two equations that we have now. Now think about what do I need to find. I have to find T1 minus T2, है ना, या T2 minus T1. T1 minus T2 क्योंकि T1 बड़ा है ना, नीला वाला बड़ा है. तो T1 minus T2 करने के लिए मुझे एक चीज कुछ यहाँ पे दिखना शुरू हो गई. इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं किसी तरह से तो ये तो वाइप आउट हो जाता है. ये T1 plus T2 बन जाता है. तो एक बार एक कंफ्यूजन आता, प्लस करूं माइनस करूं, पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 2h बन जाएगा. h मेरे को चाहिए नहीं. तो फिर आगे सोचते हैं क्या होने वाला है. ये 0 बन रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है T1 plus T2 बन रहा है. पर अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इफ दिस इज पॉजिटिव, सॉरी, है ना, क्योंकि नीचे सारा कुछ पॉजिटिव है. इसमें लाल वाले में सब कुछ पॉजिटिव है ना नीचे. इवन g इज पॉजिटिव नाउ बिकॉज वी आर टेकिंग अ कन्वेंशन डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव. सो अब इसमें अगर आप देखो तो T1 माइनस T2 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बन जाएगा, तो ए प्लस बी कट जाएगा. वहां से मुझे समझ में आ रहा है. सो नाउ वेरी क्विकली इन दोनों को ऐड किया तो दिस बिकम्स टू बी 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा. कॉमन रख लेते हैं, स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा. T1 प्लस T2 आ गया ब्रैकेट में, है ना. फिर प्लस हाफ जी कॉमन ले लेता हूं, प्लस हाफ जी, देन दिस इज T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर. यहां तक क्लियर सबको, है ना. अब इसमें से देखिए T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, है ना, ऐसे फैक्टर होगा. T2 प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा उसमें. तो आपके पास बचा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड देन सी थिंक अबाउट इट, T2 माइनस T1 बचा, लेकिन T1 बड़ा था ना, ये ब्लू वाला बड़ा था, तो मेरे को वैसे भी उल्टा चाहिए. तो पर चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि अभी हमको नहीं पता, हम ऐसे लिख देते हैं हाफ जी T2 माइनस T1, है ना. अब ये सारा इधर आके नेगेटिव बनेगा, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि T2 वैसे भी छोटा था T1 से, तो इधर लाके नेगेटिव को मैं चेंज कर सकता हूँ, T1 माइनस T2 लिख सकता हूँ. तो T1 माइनस T2, है ना, टाइम्स हाफ जी, तो हाफ जी उधर जाएगा. अब इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन तो मैं करने लगा, तो फिर, है ना, क्या बात है, बाय जी, है ना. So this is the difference in time, and then you multiply with u cos theta, you get the answer. क्लियर, सबको क्लियर, है ना. सतवंती ने जो आंसर लिखा है बिल्कुल वही है बेटा. बहुत बढ़िया बच्चे. चलिए लास्ट डाउट पे चलते हैं फटाफट से. लास्ट डाउट किसने भेजा? श्रेया ने भेजा है अभी. ओके, इन अ कार रेस, so in a car race, basically read the question yourself फटाफट से. So in a car race, car A takes a time t less than car B at the finish and passes the finishing point with a speed v more than that of car B, assuming that both the cars start from the rest and travel with a constant acceleration a1, a2, respectively. Show that v is a square root. I could not type it like that over here, so I've written थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि गूगल स्लाइड में कई बार है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस लाइक दिस. सो प्लीज एवरीबडी ट्राई फॉर अ मिनट और सो, या फिर एटलीस्ट सिचुएशन बनाइए, सिचुएशन बनाइए इसकी. सिचुएशन बनाइए, क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, आपको सिर्फ प्रूव करना है इसको. चलिए साथ में करते हैं फिर इसके सिचुएशन बना के. सो मेरे पास एक कार ए है ना, देयर इज अ कार ए एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट. नाउ दिस सेइंग कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, है ना. तो अगर कार ए यहां से चली इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और कार ए यहां पे पहुंची फाइनल वेलोसिटी v से, तो ये v होगा कितना? v होगा कितना? v होगा u प्लस a1t, ऐसा लिख सकता हूं मैं. फिनिशिंग लाइन पर u प्लस a1t ऐसा लिख सकता हूं मैं, या t1 कर दें इसको, है ना, और इजी लगेगा, क्योंकि t1 मतलब
फर्स्ट कार का टाइम, या ए लिख देते हैं, वो बेटर, और ज्यादा बेटर हो जाएगा, मोर मीनिंगफुल हो जाएगा। बट नहीं, मैंने इसके लिए लिखा था ए कंफ्यूज करता है, तो ए के लिए सबस्क्रिप्ट 1 ले लेते हैं और बी के लिए सबस्क्रिप्ट 2 ले लेते हैं ना, वो ज्यादा इजी है, क्योंकि ए फिर कंफ्यूज करेगा, वो भी ए ये भी है ना। यहां तक क्लियर। अब एक कार बी है, कार बी लाल गड्डी है, लाल गड्डी भी जीरो इनिशियल वेलोसिटी से चली, A2 एक्सेलरेशन था इसका, है ना। बट नाउ थिंक अबाउट इट, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी v1 थी, तो इसकी वेलोसिटी v2 है। v2 इज इक्वल टू u प्लस a1 या a2 हो जाएगा। इसको टाइम t ज्यादा लगा है, देखिए, कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी, इसको t1 लगा था, इसको t1 प्लस t लगेगा, कार बी ने ज्यादा टाइम लिया भाई, कार बी ने ज्यादा टाइम लिया, है ना। अब ऑब्वियसली कार ए फास्टर है ना, बिकॉज कार ए फिनिशेस द फिनिशिंग लाइन अर्लियर एंड ऑल्सो फास्टर, कार ए की स्पीड v ज्यादा है इससे। So what they're saying is the velocity at this point v1 is v greater than v2, मतलब v1 minus v2 करूंगा तो v आना चाहिए, मतलब if you subtract this one minus this you should get a b or v basically, है ना। So what we know is this minus this, मतलब a1 t1 minus a2 in the bracket t1 plus t is v। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक का स्टेप क्लियर है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड v, हमने तो v पता कर लिया, बट कह रहे नहीं v इस फॉर्म में लाके दिखाइए। तो अब इसमें देखो क्या क्या करना है आपने। आपने यहाँ a1 है, यहाँ पर a1 है, a2 है, यहाँ भी a2 है, t है, यहाँ t है, ये t1 हटाना है, ये t1 मुझे तंग कर रहा है। सो यहाँ पर स्ट्रेटेजी शुड बी, थिंक अबाउट इट, कि t1 को हटाना है किसी तरह से। तो t1 को कैसे हटाए, और दूसरी कोई इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। भाई देखो इसमें क्या क्या सेम है, कैन आई से डिस्टेंस मूव्ड इज सेम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड ऑफ द जर्नी। तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर मैं करूं, तो इसका ब्लू गड्डी का कितना लगा, ब्लू गड्डी का s इज इक्वल टू ut, जीरो, जीरो t1 प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लाल गड्डी का, लाल गड्डी का ये इसका भी जीरो है, जीरो T2 इज बेसिकली लिख देता है, T2 इज T1 प्लस T, तो T2 मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, तो T2 प्लस T ही चलने, T2 के लिए T1 प्लस T चलने देते हैं। तो दिस इज T1 प्लस T प्लस हाफ A2, है ना, हाफ A T स्क्वायर, T इज T1 प्लस T का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस सो फार, है ना। अब यहां जीरो जीरो वाले टर्म हटा देता हूं, इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्यों रखना है इनको, तो जीरो जीरो हटा दे। द रीजन फॉर दैट इज यू कैन सी इधर t1 का स्क्वायर है, इधर t1 प्लस t का स्क्वायर है, दिस इज क्लियरली अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं जितना मैं कह रहा हूं, बट स्टिल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अ लिटिल चैलेंजिंग टू डील विद, है ना। यू विल हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड ऑल दैट। हम क्या काम करते हैं ना, सिंपल दिमाग लगाते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उससे क्या होगा, रूट a1 बन जाएगा, रूट a2 बन जाएगा, बनने दो, हमने क्या करना है, और हाफ से हाफ कट ही गया तो वो भी हटा ही दो ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। So basically what you're left with now, if you take the square root here, you get square root of a1 t1 is equal to square root of a2 bracket में t1 plus t. Now if you think about t1, t1 क्या होगा, इसको यहां लाऊंगा तो t1 will come out to be square root of a2 times t divided by square root of a1 minus square root of a2 है ना, that's it, है ना। अब इस t1 को आप यहां रख दीजिए, as soon as you plug in t1 here you will see इसका बन जाएगा, है ना, you can क्रॉस आउट इसको, a1 का स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 को आप लिख सकते हैं रूट a1 का और रूट a2 का स्क्वायर, है ना, ऑल दैट। तो आप उस तरह से करके नाउ यू कैन सॉल्व दिस, क्लियर है। सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस। So this is how you actually do these kind of problems, and I'll come back with more of these. You know, so are you on track for JEE NEET NSEP? Obviously you are, and I'll see you very soon. You know, 6 बजे जिसकी class, I'll see you all. For others, if you want to join NSEP batch, you can join. For students who are part of the class, you will leave now.
I'll see you at 6 o'clock. और more doubts आप भेजते जाओ. अगली क्लास से मैं Google फॉर्म भी फ्लोट कर दूंगा in which you can submit more doubts. एक कॉमन फॉर्म बना लेंगे या फिर ईमेल एड्रेस बना लो, वो ज्यादा इजी है ना. So see you all. But first of all, Dhruv, who got the gold medal in NSEP. NSEP नहीं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, IPHO. NSEP का कोर्स है इसलिए बोल गया मैं. सो इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड में ध्रुव गॉट अ गोल्ड मेडल. एंड सिमिलरली इंटरनेशनल chemistry Olympiad में Aditi and Avnish got a silver medal for India. And again, so if you want to join, you can join the course that I have already started. I always keep telling this information for the students who are new here. I have been taking a lot of students who have prepared for Olympiads, JEE, NEET and all, and I have started this course, which is NSEP Module 2. And the classes are आज भी है Friday को 6 to 7:30 p.m. thrice a week. Assignment is given after every lecture and Sunday को test होता है. Telegram में doubt clearing के लिए you have community which is Telegram group where you can ask your doubts. The course has already started. 2 क्लासें हो गई, आज तीसरी है, but that's okay. All the recordings are available. Module 2 का प्राइस है 2000 rupees minus 10% डिस्काउंट मिल रहा होगा मेरे ख्याल से, तो कूपन लगा होता है हमेशा. And if you want the recording of module 1, you can get for extra 500 rupees. So anybody willing to join, you can see the description में coupon code, then join. And this is how the Telegram में conversations happen. This is how the classes happen. And then the leaderboard is created where you can see where you stand. And you don't have to actually join this course to be getting all these solutions that I'm giving you here. You can be part of here. मैं सिर्फ information दे रहा हूँ आपको. और encourage भी कर रहा हूँ. If you want to have a little structured kind of preparations for NSEP, you can join this. But YouTube में I will keep coming, so that's not to worry about. I'll keep coming throughout the year and हर बार. तो ये नहीं है कि कोर्स है तो YouTube नहीं चलेगा, वो चलेगा यार. Now these are the modules. Module 1 was more about motion in a plane, motion in a straight line, laws of motion, friction. But this is what we started just now. If you have not attended this, and you have Josh to learn, you can still join this. Don't worry. You can take the recording of that and you can watch it at your pace. But whatever is to be covered here that needs your enthusiasm and willingness to learn, and then module 3 and 4, 5 will follow. So join whenever if you want to by going to courses. When you click on courses at Vedantu.com, you click on courses, then Olympiad, then you can see the link, but don't have to go this route. You can use the coupon given below and get 10% discount anyways. So this is the Telegram channel. I highly encourage everybody should be part of Beyond Books Brigade. VOS का हमारा अपना channel है जहाँ पर I try to give everyday Olympiad level के questions, and some more things are being planned here. So you be part of this. And again, see you students. Very, very soon I'll be back with more such sessions. So believe in yourself, achieve your dreams, and I will see you soon. So thank you बच्चों. Bye bye. Take care. प्रियांशु, सरस्वता, कृष्णा, सबको क्लास में मिलता हूँ 15-20 मिनट के बाद. तब तक के लिए बच्चों बाय. Keep the जोश high. And I'll see you soon. Bye bye.